morning, my dear students and respected faculty members. Hope you all are good at home due to lockdown, and I also start that lectures for the students. Those are at home due to the lockdown, and these lectures, especially as usual, on as per the subject engineering drawing, and today I want to share one thing is more. When you are free and when you are in lockdown at home, then you can do so many online things. Again, I repeat, when you are free and due to lockdown at home, especially for faculty members, you can do so many things online at home. क्लियर? और कुछ कंपनीज हैं जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ऑनलाइन के ऊपर काफ़ी वर्क पिछले एक वीक से स्टार्ट किया है. तो वर्क स्टार्ट होने के कारण क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी बन रही है. तो काफ़ी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन जॉब आपको अवेलेबल करवा रही है. मैं कल के लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज दूंगा. मैं ये कह लो कि बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे एक एग्ज़ाम दोगे और एग्ज़ाम देने के बाद आप उसको इजीली क्लियर भी कर लोगे और क्लियर करने के बाद यू कैन गेट द गुड जॉब एट होम. क्लियर? एंड इन द अदर वर्ड्स वी कैन आस्क वर्क फ्रॉम होम. तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं. अगेन आई रिपीट, वी हैव सो मेनी कंपनीज. दोज आर working on it, and you can also work with that companies, and you can easily get 525,000, 30,000, 35,000, 50,000, 60,000, maybe 1 lakh. Clear? Per salary if you perform good as per the rules of that companies, and you can work from home easily. And the students also, those want to learn by earn, और यू कैन से अर्न बाय लर्न. तो अगर वो स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो लर्न बाय अर्न करना चाहते हैं वो, तो दे कैन आल्सो डू सम वर्क फॉर दैट कंपनीज. तो कल के लेक्चर में मैं जितना कि मैंने थोड़ा नॉलेज मेरे को अभी इसका हुआ है, तो कल के लेक्चर में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे इन कंपनी में वर्क कर सकते हो और आप घर बैठे कैसे सैलरी गेन कर सकते हो. मीन्स व्हेन यू वर्क फ्रॉम होम. क्लियर? तो टुडे वी स्टार्ट आवर चैप्टर, एंड अगेन बिफोर स्टार्ट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्लीज share my lectures with your students group. Clear? And you can also share my mobile number with your groups 9417199660. Again I repeat, my mobile number is 9417199660, and my YouTube channel link is Professor Banot. प्रोफेसर का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है PROF. You can see here PROF, and Banot BHANOT. B is capital and P is capital. Again I repeat, Professor PROF and Banot BHANOT, Banot. So you can also share with your friends and in your student groups my YouTube link and my mobile number. And those students already stay at home due to Corona. Clear? Due to COVID-19, so they easily sit at home and easily learn that subject and that chapter and the concept of this chapter, this subject. Clear? So एक यही हमारा उपरालय है, मेरा उपरालय स्पेशली यही कि आप लोग घर बैठे आराम से इस सब्जेक्ट को लर्न कर पाओ, इसके कॉन्सेप्ट्स लर्न कर पाओ. ओके, थैंक यू वेरी मच. सो टुडे I start the new chapter. Today I start the new chapter, and the name of the chapter is Projection of Planes. The name of chapter is Projection of Planes and Lamina.
projection of planes and lamina. Okay, so up to yesterday lecture we have covered the chapter projection of line. In yesterday lecture we covered that chapter complete, and the concept of that chapter is completed in yesterday lecture. And from today we start from new chapter, that is projection of planes and lamina. Okay, so when he talk about planes and lamina, and when we start about planes and lamina, then why he add the word here plane? Because normally in the mind of students the thing is strike, the chapter name is the object name is lamina, then why we add the word plane here? Clear? Why we add the word is plane here? Because if I want to say we have a plane, we have please carry the other two sheets, acrylic sheets from my office, please. So when we start the chapter lamina and plane, so we talk about the plane first. So why we talk about the plane first? Because हम यहाँ तक ये समझते हैं कि हमने ऑलरेडी प्लेन को रीड कर लिया है, प्लेन को लर्न कर लिया अच्छी तरह. ऑलरेडी हमने 3 प्लेन जो लर्न किए थे. There are 3 planes are principal planes. We also can ask these planes are as a principal planes. So in that planes already we covered. In the vertical direction we have that is vertical plane. जो vertical direction में होगा that is a vertical plane, and the plane in horizontal direction that is a horizontal plane. So in that case we already covered the vertical direction, that is a vertical plane, and the horizontal direction, that is a horizontal plane. So suppose this is your again plane, that is your horizontal plane. This sheet is, or this glass is horizontal plane, and now this sheet is as a vertical plane. Clear? That is as a vertical plane. And in that case we add one plane more, and that is the profile plane. That plane divided the all quadrants into equal 8 parts. So due to that, model converted quadrant to octant model, and the plane that divided the all quadrants, the name of that plane is PP, profile plane. Clear? So as per the concept of that, अभी तक हमने जनरल ड्राइंग में जब हम कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तक हमने 3 प्रिंसिपल प्लेन के बारे में बात की है. अप टू हियर वी ओनली cover the 3 principal planes, and these 3 principal planes are which one? These 3 principal plane, vertical plane and profile plane, and this one is horizontal plane. So ये सबसे पहले 3 plane आए, horizontal plane, vertical plane, and you can see here that is the which plane? That is the profile plane. Clear? तो सबसे पहले हमने ये 3 principal planes को cover किया. Okay? तो जो स्टार्टिंग में प्लेन आए वो प्लेन क्या हो गया? एज ए दीज प्लेन्स आर एज ए प्रोफाइल प्लेन्स. तो जो स्टार्टिंग में प्लेन आए हमारे पास, दीज आर एज ए प्रोफाइल प्लेन्स. हमने प्रिंसिपल प्लेन को कवर किया सबसे पहले, एंड दैट प्रिंसिपल प्लेन्स सेड एज ए प्रोफाइल सेड एज ए these 3 planes HP, VP and PP, these 3 principal planes, because that are the starting planes. क्योंकि हमने ड्राइंग का बेस ही यहाँ से स्टार्ट किया, इसलिए हम इन तीनों प्लेन्स को, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन भी बोलेंगे. क्लियर? ओके. तो अब इस चैप्टर में उसने प्लेन क्यों ऐड किया? व्हाई ही ऐड द प्लेन अगेन इन दैट चैप्टर? इस चैप्टर में प्लेन का वर्ड क्यों ऐड किया? बिकॉज इन दैट चैप्टर नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट द लैमिना, बट व्हाई ही ऐड द वर्ड प्लेन? बिकॉज उसने ये बोला था कि ये आपका, अब ध्यान से समझना थोड़ा, ये बोला था कि ये आपका वर्टिकल प्लेन है. क्लियर? अब मैं सपोज एक लैमिना, एक शीट और ऐसे रख देता हूं इस प्लेन के आगे, एक शीट और ऐसे रख देता हूं. क्लियर? तो अब ये शीट वर्क कर रही है सपोज एज ए रेक्टेंगुलर लैमिना. क्लियर? एंड दैट शीट बिहाइंड इट, दैट शीट वर्क एज ए वर्टिकल प्लेन सपोज. क्लियर? सो इट मींस normally the direction of the both sheets are what? Same. तो ये इस शीट की जो डायरेक्शन है ये वर्टिकल प्लेन के साथ वर्टिकल डायरेक्शन में सेम है. इट मींस दैट इज जस्ट लाइक ए वर्टिकल प्लेन. मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर सपोज मैंने ये शीट सामने रखी है, अगर मैंने, अब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी ये चीज, ये वाली एक रेक्टेंगुलर शीट आपके सामने मैंने यहाँ रख दी, और इसके पीछे एक और रेक्टेंगुलर शीट मैंने ऐसे रख दी. क्लियर? And now that sheet work as a lamina.
first sheet, this one work as a lamina, and the second sheet, this one work as a vertical plane. Clear? And suppose if I ask, I remove this sheet and I also remove from back side of this vertical plane. So it means what? Now this plane is work as a rectangular lamina, and now your whole board is work as a vertical plane. Your whole board is work as a vertical plane. So it means what I follow from here? I follow from here the behavior of the normally lamina and planes are same, because we assume the plane is in 2D, and also the lamina is in normally we assume the lamina also is in 2D and negligible thickness. Clear? So behavior of the plane and lamina normally are same. तो ही ऐड द वर्ड हियर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, क्योंकि प्लेन्स की आपने प्रोजेक्शन ऑलरेडी ले ली है। अब अगर उसी प्लेन्स की प्रोजेक्शन के ऊपर या उसी प्लेन्स को एज ए लैमिना अज्यूम कर लो, तो जैसे आपका प्लेन वर्क करेगा वैसे ही नॉर्मली लैमिना वर्क करेगा। कैसे? जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, और अब अगर मैं कहूँ कि ये लैमिना, तो इसको ऐसे रख दिया रेक्टेंगुलर लैमिना को, इट मींस नाउ दिस रेक्टेंगुलर लैमिना वर्क एज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर? अब आपका प्लेन इंक्लाइंड हो रहा था, तो इट मींस लैमिना अज्यूम कर लिया कि इंक्लाइंड हो रहा है। तो इट मींस जैसे जैसे वर्ड प्लेन इसलिए ऐड कर दिया थोड़ा, एक तो प्लेन के ऊपर उसकी प्रोजेक्शन जा रही है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट क्या है? लैमिना, ठीक है। और दूसरा, प्लेन को ऑलरेडी एज ए प्रोजेक्शन स्टूडेंट शो कर चुके हैं अप टू द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पॉइंट तक, ठीक है, पॉइंट ऑफ लाइन तक, चैप्टर तक। तो ऑलरेडी उसके प्लेन के और लैमिना, उसके प्लेन के कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के माइंड में ऑलरेडी है, ठीक है। सो ही ऐड द वर्ड प्लेन हियर। क्लियर? एंड सेकंड थिंग इज we taking the projection of the lamina on that plane. So due to that, the full name of the chapter is projection of planes and lamina, क्योंकि आफ्टर ऑल हम उस लैमिना की प्रोजेक्शन प्लेन के ऊपर ही लेंगे, और नॉर्मली बिहेव जो है प्लेन को भी 2D हम अज्यूम करते हैं और लैमिना को भी 2D हम अज्यूम करते हैं। और अभी प्रैक्टिकली मैंने आपको करके भी दिखाया थोड़ा, बिहेव ऑफ द प्लेन एंड लैमिना नॉर्मली आर सेम। सो ड्यू टू ही हैव द name of that chapter, projection of planes and laminas. Clear? Okay. Now we are talking about, it means after that when I am talking about the lamina, it means lamina, and when I am talking about the plane, it means normally both things are same. Clear? But the plane or you can say the picture plane used for the projection of that plane or lamina, that is as a picture plane. Clear? And the object is as a plane and lamina, that is as your object. Clear? अभी आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आगे आगे जैसे हम इसको कवर करेंगे। Clear? So we start from the first case. Now we start from the first case, and in the first case he asked, what he asked, he gave the condition of your lamina again like a line. अब जो लाइन की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि कभी कभी लाइन पैरेलल है, कभी लाइन परपेंडिकुलर है, कभी लाइन इंक्लाइंड है, ठीक है, कभी लाइन कंटेन्ड है, कभी अबव है, कभी बिलो है, कभी इन फ्रंट ऑफ है, कभी बिहाइंड है। सो ऑल कंडीशन नाउ वर्क ऑन द लैमिना, ठीक है। सारी कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप अब हम वर्क करेंगे, कवर करेंगे ऑन द केस ऑफ लैमिना, कि लैमिना डिफरेंट कंडीशंस में होगा तो लैमिना कैसे नजर आएगा, और उसके डिफरेंट व्यूज, मे बी फ्रंट व्यू, मे बी टॉप व्यू और मे बी साइड व्यू हमें कैसे नजर आएंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? एंड हाउ वी कैन टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द लैमिना ऑन द प्रिंसिपल प्लेन्स, horizontal plane, vertical plane and profile plane, and what are the concept behind it, and how we can draw the projection of the different views of lamina on that planes. Clear? So all things we discuss in this chapter now. Clear? Step by step. Clear? Normally इसके 5 or 6 cases बनते हैं, 6 cases I think, और मे बी 1 or 2 एक आधा केस और ज़्यादा हो, तो नॉर्मली 6 केसेस मेजर 6 केसेस हैं। तो इन केसेस के अकॉर्डिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लैमिना समझा दूंगा
और अगर हम इस 6 केसेस को कर लेंगे, मैं रिस्पेक्टेड टीचर्स को भी यही बोल रहा हूँ, बोलूँगा जो स्पेशली नए टीचर हैं इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट, अगर आप ये 6 केसेस बच्चों को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह करवा देते हो तो बच्चों को सारा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग और मैथ का यही तो मजा है, ड्राइंग और मैथ में यही चीज मजेदार है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए देन यू कैन मेक द थाउजेंड्स प्रॉब्लम ऑन दैट कॉन्सेप्ट्स। आप कितनी ही प्रॉब्लम उसके ऊपर, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बना सकते हो। ठीक है, एंड स्पेशली आई सल्यूट टू PS गिल सर, एंड ही इज द जीनियस पर्सन फ्रॉम पंजाब, और जिन्होंने बुक लिखी है इंजीनियरिंग ड्राइंग की एंड मशीन ड्राइंग की भी। और जब मैंने उस बुक को पढ़ा, जब मैंने उस बुक की प्रॉब्लम सॉल्व की और जितनी प्रॉब्लम सॉल्व की, तब मेरा अगेन सल्यूट करने को मन किया PS गिल सर को, क्योंकि वो ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने एक ऐसी बुक लिख दी, मेरे ख्याल से उसके पैदल कोई बुक नहीं लिखी जा सकती ऑन द इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर कोई लिखेगा भी तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम उन्होंने डिस्क्राइब की हैं उस बुक में, सॉल्व की हैं उस बुक में, कि आप अगर उस बुक को पढ़ोगे अच्छी तरह ढंग से तो आपको मज़ा आएगा कि वास्तव में किसी बंदे ने डेप्थ में जाके किसी सब्जेक्ट को रीड किया है, किसी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, एंड दैट इज आल्सो फ्रॉम द डेप्थ। ठीक है, बिल्कुल डेप्थ में जाके एक चीज को कवर किया है, और नॉट ओनली इवन इन सिंगल चैप्टर, इन द all chapters and really again I salute to PS गिल सर कि उन्होंने ये जो बुक लिखी है, कितना टाइम उस बंदे ने अपना इसके ऊपर लगाया होगा, तब जाके ऐसी बुक तैयार होती है। क्लियर, मेरे ख्याल से कम उन्होंने 10 15 20 साल लगाए होंगे, और अभी भी उनका न्यू एडिशन आता है तो अभी भी कुछ ना कुछ उसमें न्यू ऐड होता है ना, चेंज होता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि अदर टेक्स्ट बुक्स आर नॉट गुड, अदर टेक्स्ट बुक भी बहुत अच्छी है, ND भट्ट है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, टाटा मैकग्रा-हिल की बुक्स है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन जितनी डेप्थ में जाके प्रॉब्लम PS गिल में सॉल्व की हैं, मेरे को खुद को वो सबसे ज़्यादा बेटर लगी। क्लियर, बाकी अदर ऑथर्स आर आल्सो गुड, अदर टेक्स्ट बुक आर आल्सो गुड, क्योंकि आप मेरे ख्याल से अभी मैं कल ही अपने यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है, मैम एक असिस्टेंट है, उनको कल ही बता रहा था कि बुक की कोई बात चल रही थी एंड शी इज आस्किंग कि सर ये बुक में कुछ ज़्यादा अच्छा समझ नहीं आता, किसी और सब्जेक्ट की बुक थी XYZ। तो मैंने उनको ये कहा कि कोई भी आप बुक लेते हो तो उस बुक में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। हाँ, शर्त ये है कि आप उस बुक को या उस कॉन्सेप्ट को या उस चैप्टर को कितनी डेप्थ में जाके रीड करते हो, शर्त ये है। अगर आप उसको जितनी डेप्थ में रीड करोगे, कुछ ना कुछ हर ऑथर ने, जिस भी ऑथर ने बुक लिखी है, हर ऑथर की यही कोशिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी बुक लिखे, या कोई नए तरह का कॉन्सेप्ट वो आपको, या नए तरह का कोई मेथड आपको बता सके जिससे आपको वो इजी लगे। ओके, एनीवे, सो अगेन आई सल्यूट टू PS गिल सर। So again I come on my topic, and the lamina is parallel to VP and perpendicular to HP. Lamina is parallel to VP and perpendicular to HP. Clear? और यहाँ मैं फिर एक बात और कहना चाहूँगा कि PS गिल सर की जो बुक है that is not only in पंजाब जोन। ठीक है, मेरी जो अपनी खुद की टेक्निकल स्टडी है वो हरियाणा में है, हरियाणा से फरीदाबाद से है, तो स्टार्टिंग जहाँ से टेक्निकल स्टडी हुई थी तो वहाँ भी हमें PS गिल की ही बुक वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। उसके बाद मेरी कुरुक्षेत्र के पास से स्टडी, वहाँ भी PS गिल थी। फिर मैं एज ए टीचर रहा चंडीगढ़, वहाँ भी PS गिल थी। हिमाचल में कुछ देर मौका मिला मेरे को वहाँ टीच करने का, या वहाँ के पेपर चेक करने का, J&K का मौका मिला, एग्ज़ाम चेक करने का वहाँ का। ठीक है, और इवन UP का आल्सो। तो इन द ऑल स्टेट्स जहाँ जहाँ भी मैंने देखा, दिल्ली, हरियाणा, UP, हिमाचल, सभी जगह PS गिल की ही बुक हर इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादातर चल रही थी उन दिनों में। क्लियर? ओके, तो अगेन आई कम ऑन दैट टॉपिक, लैमिना इज पैरेलल टू VP एंड पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HPS. Now I said the lamina is parallel to VP and perpendicular to HP. So before I start the case, I want to discuss
with you about the different types of lamina. I want to discuss with you for the different types of lamina. So what are the lamina? Lamina basically what is the lamina? So when we start the definition of lamina, then when we start the chapter of lamina, then definitely the 2 marks or maybe 4 marks definition in the exam. What is the plane or what is the lamina? What is the plane or what is the lamina? Maybe some author asking about plane and some author asking about lamina. So what is the plane and what is the lamina? Both are normally same thing if we use as a object. But if plane use for the projection of your object, then that are the principal plane HP, VP and PP, like that planes. Clear? Maybe the auxiliary planes, auxiliary inclined plane, auxiliary vertical plane, that planes, and auxiliary horizontal planes. We have these auxiliary planes. It means except the basic 3 principal planes HP, VP और PP. अब यहाँ एक चीज याद रखना. Except the basic 3 principal planes of that are horizontal plane, वर्टिकल प्लेन एंड प्रोफाइल प्लेन, इसके अलावा हमें जितने भी और प्रिंसिपल प्लेन के अलावा और जितने भी प्लेन मिलेंगे, ठीक है, वो सारे ऑक्सिलरी प्लेन होंगे. ये बात याद रखना, क्योंकि हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स का तीनों व्यू 3D कवर करने के लिए फॉलो किए थे, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड प्रोफाइल प्लेन. तो दीज आर द स्टार्टिंग प्लेन्स. व्हेन वी स्टार्ट द concept about the engineering drawing, then the concept start from that horizontal plane, vertical plane and profile plane. So these are the starting coming planes. ठीक है, starting planes है ये आपके पास जो starting में आए. तो due to that these planes we can say these are the principal planes. And after that other planes, इनके तीनों के अलावा जितने भी अब आप plane और read करोगे, जितने भी और plane आप learn करोगे, वो सारे अदर प्लेन्स जो चले जाएंगे वो ऑक्सिलरी प्लेन्स में चले जाएंगे. एंड दीज आर मे बी ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, मे बी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन और मे बी ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइक दैट. क्लियर? ओके. सो अगेन आई कम ऑन लैमिना. सो व्हाट इज द लैमिना बेसिकली? पहले हमने पढ़ा था ड्राइंग का जो सिलेबस है ना, वो दैट इज वेरी वेरी फाइन. मतलब जिस बंदे ने ये सिलेबस डिजाइन किया ना, आई सैल्यूट टू दैट पर्सन अगेन. सिलेबस बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया है. बिल्कुल आपको एक पॉइंट से लेके धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप आगे लेके गया है. ठीक है, तो जैसे हमारे पास पहले था पॉइंट. सो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है ना. In the first chapter we learn about the points, and that is the definition of the point. We have a point that is a simple single dark dot. As per my language, it's a simple single dark dot, because I am again not agree that is the zero radius, because in that case if we see the point is maybe very minute, very fine, maybe that is as a particle, then that particle also having some dia when we see under the microscope. Clear? So in that case, if the particle is round, so that is definitely having some dia. So if that is having some dia, then how we can say that is zero radius? कोई भी चीज का अगर डाया तो उसको हम जीरो रेडियस नहीं बोल सकते. तो पॉइंट को तो नॉर्मली हम राउंड ही, ज्यादातर पॉइंट क्या है, ऐसी टिप लगाते हैं पेंसिल की, तो एक राउंड शेप का एक डॉट बनता है. सो दैट राउंड शेप आल्सो हैविंग सम डाया, सो वी कांट से दैट इज द जीरो रेडियस. Clear? So in my language the point is what? That is a simple single dark dot. That is the sufficient definition about the point. It is a point. Now we are talking about line. So when I meet the 2 points, अगर मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर मैंने इस दोनों पॉइंट को आपस में मीट कर दिया, if we meet the 2 points, then that is the definition of the line. Clear? And we are talking about the straight line. So it's the shortest distance between 2 points is called a line. ठीक है, बड़े से बड़ा डिस्टेंस तो डिस्टेंस से दिल्ली तक का भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं और दोनों पॉइंटों में हमने अगर एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, देन दैट इज लाइन. और अगर उस डिस्टेंस को स्ट्रेट क्रिएट कर रहे हैं, देन दैट इज ए स्ट्रेट लाइन. सिंपल. ओके. अब इसी लाइन को देखो, इट्स क्यों ये सिलेबस बहुत अच्छी तरह डिजाइन किया गया है, मैं उसको आपको बताना चाह रहा हूँ. पहले था पॉइंट, अब एक पॉइंट की जगह मैंने दूसरा पॉइंट और लगा दिया और उनको मीट बंद कर दिया, तो वो पहला पॉइंट था पॉइंट, उसकी हमने प्रोजेक्शन ली, तो वो चैप्टर बन गया प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट. अब मैंने एक पॉइंट और लगा दिया, उन दोनों पॉइंट को मीट कर दिया. अब उन दोनों पॉइंट को जब मीट किया तो वो चैप्टर बन गया प्रोजेक्शन ऑफ लाइन. और अगर स्ट्रेट लाइन में मीट किया तो दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. क्लियर? और अगर मैंने इस लाइन को
और डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया ऐसे, इफ आई एक्सटेंड दैट लाइन इन द डिफरेंट डायरेक्शन एंड विद द अदर लाइंस, ठीक है। तो मैंने और लाइनें, एक लाइन की प्रोजेक्शन ले ली और मैंने 3 लाइनें और ड्रॉ कर दी, तो तीनों लाइनों को आपस में मीट कर दिया, देन दैट इज व्हाट, दैट इज द लैमिना, दैट इज व्हाट, दैट इज द लैमिना। सो दैट इज द कमिंग चैप्टर जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स एंड लैमिना, क्लियर ना। और अब सेम लैमिना को, अगर सेम लैमिना मैंने एक लैमिना सेम और ऐसे बना दिया, सपोज जैसे पहला लैमिना था एक वैसा और लैमिना सपोज मैंने और बना दिया, सेम ऐसे स्क्वायर लैमिना था तो स्क्वायर लैमिना एक और बना दिया। अब इस स्क्वायर लैमिना के मैंने कॉर्नर्स जॉइंट जो है वो आपस में मीट करा दिया लाइक दिस सपोज, तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर बन गया, कौन सा, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर बन गया प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, क्लियर ना। देखो सिलेबस कितना अच्छा डिजाइन किया गया है, मतलब लैमिना पहले पॉइंट था, एक पॉइंट और डाल दिया, मीट कर दिया तो लाइन बन गया, अब और लाइनें मीट कर दी आपस में तो लैमिना बन गया, अब एक लैमिना के साथ दूसरे लैमिना को मीट कर दिया तो वो सॉलिड बन गया, क्लियर ना। अब उसी सॉलिड को हमने कट कर दिया तो वो नेक्स्ट चैप्टर बन जाएगा सेक्शन ऑफ सॉलिड। अब उसी सॉलिड के अंदर एक सॉलिड हमने और पेनिट्रेट कर दिया तो वो नेक्स्ट चैप्टर बन जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, क्लियर ना। और उसी सॉलिड्स को अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू दे देते हो तो वो आपका नेक्स्ट चैप्टर बन जाएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और मे बी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, क्लियर। और उसी सॉलिड को अगर आप एज ए हॉलो मान के इनर साइड से अगर आप उसको खोल देते हो तो वो नेक्स्ट चैप्टर बन जाएगा डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, क्लियर ना। और उसी आइसोमेट्रिक की अगर आप कोई लाइन मिस कर दोगे ड्राइंग में तो वो अगला कॉन्सेप्ट न्यू चैप्टर बन जाएगा मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो योर सिलेबस इज डिजाइन स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत ही अच्छी तरह डिजाइन किया गया, बीच में किसी भी चीज को बिना मिस किए, इसलिए अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ते हो then that is the very 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 interesting subject, it's not a tough subject. Again I ask to students and my dear colleagues जिनको ये जो सब्जेक्ट है टफ लगता है, दिस सब्जेक्ट इज नॉट टफ, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हो, ठीक है। वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ोगे तो वो डेफिनेटली टफ नहीं लगेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप इसको रीड करना डेप्थ में शुरू कर दोगे तो आपका अपने आप इंटरेस्ट बनता जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सिलेबस खत्म कर दिया और कब हमने चैप्टर खत्म कर दिया और कब हमने पूरा सब्जेक्ट फिनिश कर दिया, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ओके। सो आई कम अगेन माय पॉइंट, आज काफी कुछ डिस्कस हो रहा है एक्सेट्रा, तो अगेन आई कम ऑन माय पॉइंट। और ये चीजें डियर फैकल्टी मेंबर्स, ये चीजें एंड स्पेशली माय मैसेज टू माय कलीग्स, ये चीजें स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करनी बहुत जरूरी है, ये चीजें स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। अगर आपने डायरेक्ट जाते ही कॉन्सेप्ट लिख दिया और कॉन्सेप्ट समझा दिया ना तो वो आधे स्टूडेंट्स के दिमाग से निकल जाएगा। पहले सबसे पहले बीइंग ए गुड टीचर, सबसे पहले आपका मोटो ये होना चाहिए, प्रिपेयर योर स्टूडेंट्स फॉर लर्न दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब प्रिपेयर योर स्टूडेंट्स फॉर लर्न योर सब्जेक्ट और प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर लर्न द कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि जब तक कोई भी कैप्टन अपनी आर्मी को अच्छी तरह तैयार नहीं ना कर सकता, वो कभी मैदान फतेह नहीं कर सकते, ठीक है, कभी जंग जीत नहीं सकते। तो बीइंग ए गुड कैप्टन, बीइंग ए गुड टीचर, एक अच्छे टीचर का भी फर्ज है कि अगर उसकी क्लास में 60 स्टूडेंट बैठे हैं तो 60 के 60 को साथ लेके चलना और पहले उनके माइंड को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर आपने उनके माइंड को डेवलप कर दिया कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को लेके क्यूरियोसिटी उनके माइंड में क्रिएट कर दी तो डेफिनेटली स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट पढ़ेगा ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स से उसको पास भी करेगा डेफिनेटली। लेकिन अगर हम उसको एक क्यूरियोसिटी नहीं क्रिएट कर पाए कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, तो वो अच्छी तरह कभी भी लर्न नहीं करेगा, सिर्फ रट्टा लगाएगा और एग्जाम में उसको याद रहता नहीं रहता, इट्स नॉट श्योर, क्लियर। तो बीइंग ए गुड कैप्टन, बीइंग ए गुड टीचर, आपको अपने स्टूडेंट्स को जो है उनको प्रिपेयर करना पहले बहुत जरूरी है,
ठीक है। तो कोई भी आप लेक्चर तैयार करने से पहले सिंपल 5-7 मिनट की उनसे बात जरूर किया करो, ठीक है। नॉट ऑलवेज, लेकिन कभी 2-3 लेक्चर के बाद जरूर, ठीक है। और अगर टाइम हो तो हर लेक्चर से पहले, क्योंकि जब तक आप फ्रेंडली नहीं होगे तब तक स्टूडेंट कभी नहीं पढ़ पाएंगे आपसे ढंग से, ठीक है। स्टूडेंट को डराना नहीं है, हमने स्टूडेंट को लर्न करवाना है कि वो पढ़ेगा कैसे, याद कैसे करेगा, ठीक है। दिस इज अवर रूल, बेसिकली दिस इज द रूल ऑफ टीचर। अदरवाइज तो स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक पढ़ी है, एक से अच्छी टेक्स्ट बुक उसके पास घर पे भी पढ़ी है, और आजकल तो गूगल बाबा के पास बहुत कुछ है। गूगल के ऊपर आप यूट्यूब के ऊपर गूगल पे सर्च मारो, एक एक सब्जेक्ट का एक एक चीज़ का टॉपिक अच्छी तरह मिलता है। लेकिन आपका टीचिंग में है, आप कैसे पढ़ा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपके स्टूडेंट आपको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक। जरूरी नहीं है भीड़ इकट्ठी नहीं करनी हमने, बेशक आप 100 स्टूडेंट को नहीं पढ़ाओ, बेशक आप 10 स्टूडेंट को पढ़ा दो, लेकिन वो 10 के 10 आपको फॉलो करें, क्लियर, तब पढ़ाने का मजा है। ये नहीं है कि मैंने 100 स्टूडेंट पढ़ा दिया और उस 100 स्टूडेंट में से मेरे को 5 स्टूडेंट भी फॉलो नहीं कर रहे, या जो मैंने कंसेप्ट समझाए वो 5 के पल्ले भी नहीं पढ़े, तो देन नो फन ऑफ दैट टीचिंग, नो फन ऑफ दैट टीचिंग, एंड दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर यू, प्लीज सॉरी टू आस्क, ठीक है। दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर यू इफ योर स्टूडेंट्स नॉट लर्न from your concepts, from your methods, then this job is not for you. Sorry again I am clear, but we can try. देखो कोई भी अच्छा टीचर शुरू से नहीं होता, आप धीरे धीरे ट्राई करोगे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे टीचर बन जाओगे, ठीक है। जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया था, या जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, तो मेरा भी कोई गुरु था जिसने मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ाया अच्छी तरह, ठीक है। सो आई सैल्यूट टू दैट गुरु, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप लर्न करोगे, जब आप मेहनत करोगे, तो आपकी पकड़ अपने आप सब्जेक्ट पे बनती जाएगी, और जैसे जैसे आप मेहनत करोगे वैसे वैसे आपको पढ़ाने का मजा आएगा, ठीक है। जैसे एक अच्छे म्यूजिशियन को अच्छा म्यूजिक बजाने में मजा आता है ना, ऐसे ही एक अच्छे टीचर को अच्छा पढ़ाने में भी मजा आता है, ठीक है। और अगर वास्तव में वो दिल से पढ़ा रहा है, मजे से पढ़ा रहा है, तो उसके स्टूडेंट डेफिनेटली उसको कवर करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और 101% करेंगे। हाँ, शर्त ये है कि स्टूडेंट पढ़ने वाला जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो हम उसी डियर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, देखो टीचर उसी, या हम उसी स्लेट पे लिख सकते हैं जो स्लेट खाली होगी। अगर वो स्लेट पहले भरी पड़ी है तो पहले हमें उसे वॉश करना पड़ेगा, देन वी कैन राइट ऑन इट, क्लियर। मैं अगर इस बोर्ड पे लिखना चाह रहा हूँ, अगर ये पहले बोर्ड पूरा भरा पड़ा लिख लिख के, तो मैं इसके ऊपर राइट करूंगा भी आपको समझ नहीं आएगा। सो फर्स्ट व्हाट आई डू, फर्स्ट आई क्लीन दैट बोर्ड, देन आई कैन राइट इट। तो सेम लाइक दैट, पहले स्टूडेंट्स के माइंड को वॉश करना बहुत जरूरी है, पहले उसको समझाना बहुत जरूरी है कि तुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है। और पढ़ना है, मन है पढ़ने का, तो नहीं समझ आता फिर भी समझ आएगा, डोंट वरी, व्हेन यू फॉलो माय कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझानी बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स को मैं यहाँ ये कहूँगा कि आपको भी टीचर का साथ देना चाहिए अगर वास्तव में आप पढ़ना चाहते हो। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, अगर आपका मन ही नहीं है पढ़ने का, देन प्लीज डियर डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ यू एंड योर टीचर्स, क्लियर, ओके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो समझ नहीं आएगा, समझोगे तो सब कुछ समझ आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा, ठीक है। एक बार नहीं समझ आएगा, दूसरी बार समझ आएगा, दूसरी बार नहीं समझ आएगा, तीसरी बार समझ आएगा, क्लियर, लेकिन आपको समझ जरूर आएगा। यह स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर में अगर वाटर टैप है, ठीक है, तो अगर वो वाटर टैप लीक कर रही है, उसमें एक एक ड्रॉप अगर पानी गिर रहा है, तो वो जब तक आप बैठे चेयर पे बैठे उसको देख रहे हो पानी गिरता जा रहा है, बट जब आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करेगा कि मैंने वो पानी को सेव करना है, उसको गिरने नहीं देना, मैंने वाटर टैप को बंद करना है, देन डेफिनेटली यू स्टैंड एंड यू डू समथिंग फॉर दैट, क्लियर। तो आप उठोगे, पहले आप टैप को कसोगे, फिर भी पानी नहीं बंद हुआ, फिर आप अगर टेक्निकल पर्सन हो आप, तो फिर आप डेफिनेटली देखोगे कि इसमें पानी बंद क्यों नहीं हो रहा है, इसके थ्रेड लूज है, देन इसके अंदर जो वॉशर डली है वो इसकी जो है वॉशर खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, ठीक है, जहाँ इसमें कोई और रीज़न है। तो अगर आप उसको ठीक कर पाए तो ठीक, देन अगर नहीं ठीक कर पाते तो आप प्लम्बर को बुलाओगे,
ठीक है, फिर वो ठीक करेगा। तो इट मीन्स जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी कि मैंने पानी की एक एक बूंद को सेव करना है, बचाना है, तब जब तक आप चेयर से नहीं उठोगे तब तक वो पानी गिर ही रहा है। तो सेम लाइक द सब्जेक्ट, जब तक आप दिमाग में ये नहीं सोचोगे कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है, किसी भी तरह बाई हुक बाई क्रुक मैंने इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से पास होना है, जब ये चीज़ आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगी देन डेफिनेटली आप 101% श्योर कि उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से पास हो गए होंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रोक दे। क्लियर? तो आज काफ़ी ओवर हो रहा है, थोड़ा आउट ऑफ जा रहा हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है, ये चीज़ें ज़रूरी है। बीइंग ए टीचर स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने पहले 14-15 लेक्चर दे दिए आपसे बिना बात किए ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें स्टूडेंट्स को समझानी ज़रूरी है। और मेरी आदत है कि मैं लेक्चर में धीरे धीरे ये चीज़ें समझाता भी हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, इट्स माई हैबिट। अब ये हैबिट गलत है या सही है आई डोंट नो, बट इट्स माई हैबिट। ठीक है, और आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 22 ईयर्स का टीचिंग का, उसमें मैंने देखा कि ये हैबिट बेटर ही रही है। दिस हैबिट इज़ बेटर फॉर द स्टूडेंट्स। मेरा लेक्चर लॉन्ग जरूर चला जाता है, मेरे को बोलना भी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर मेरी थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट करने से अगर किसी का सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है तो इट्स गुड फॉर मी एंड द स्टूडेंट्स आल्सो। थैंक यू। Again we come on the topic. Again we come on the lamina first. So what is the lamina? Basically सेम ऐसे अगर हमने लाइन को मीट करा दिया, डिफरेंट लाइंस को मीट करा दिया, तो वो लाइन क्या बन जाएगी? एक शेप बन जाएगी। अगर वो शेप एक शेप ले लिया, उस लाइन ने डिफरेंट डायरेक्शन में जाके आपस में मीट करके उसको शेप बना ली हमने, देन इट्स कॉल्ड ए लैमिना। इट्स कॉल्ड ए लैमिना और प्लेन। So here what is the definition of lamina or plane? The definition of the laminar plane, it's a two-dimensional object. Normally it's a two-dimensional object. Two-dimensional object हम वहाँ clear cover करते हैं इसको when we draw the lamina on the board only. When we draw the lamina on the drawing sheet only, then that is a two-dimensional object. So it's a two-dimensional object having the length and breadth. Having the length and breadth. So this is the definition of the lamina. It is a two-dimensional object having the length and breadth. Clear? But when we start the lamina as a sheet, लेकिन जब लैमिना को एक शीट की तरह assume करके स्टार्ट करेंगे, then that sheet definitely having some thickness. Then that sheet definitely having some thickness. You can see here having some thickness. And maybe that thickness in microns, but having some thickness. If that is having some thickness, and in that case of lamina, we assume that thickness is the negligible thickness. ठीक है, तो जितनी भी थिकनेस हम लैमिना की होगी उसको हम नेग्लिजिबल थिकनेस के अकॉर्डिंग अज्यूम करेंगे। ठीक है, सो हियर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लैमिना? लैमिना इज द two-dimensional object having the length or breadth and it has the negligible thickness, that is just like a line. जितनी एक लाइन की थिकनेस होती है उतनी की आपने लैमिना की थिकनेस अज्यूम करनी है। क्लियर? जस्ट लाइक ए लाइन, एक लाइन जितनी थिकनेस अज्यूम करनी है, इट्स कॉल्ड ए लैमिना। ठीक है, सपोज आपका कोई टेक्स्ट बुक का जहाँ आपका रजिस्टर का कोई पेज है सपोज, तो द पेज इज हैविंग सम थिकनेस, मे बी दैट पेज इज वर्क लाइक ए लैमिना। इफ यू हैव अ पेज, ठीक है, A4 size page, suppose you have it, then that page is work like a lamina, then that is the rectangular lamina. But the page having also some thickness, maybe that thickness is in micron, but we assume in the case of lamina that thickness is negligible, that is just like a line. So it's the definition of the lamina. It's a two-dimensional object having the length and breadth and negligible thickness, that is just like a line. It's called a lamina. Clear? And you can also give the definition in the case plane. The plane is also like that. It is a two-dimensional object having the length and ऐसे पढ़ा तो height होगी, ऐसे पढ़ा तो breadth होगी. So length and breadth, and it is the negligible thickness that is just like a line. You can see here, no doubt, this is your plane
ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेन है। प्रैक्टिकली आप देखो, रट्टा नहीं लगाना, प्रैक्टिकली देखो, ये आपका प्लेन है रेक्टेंगुलर प्लेन, एंड व्हेन दैट प्लेन इज पैरेलल टू वीपी, तो वीपी के ऊपर इसकी ट्रू शेप आपको पीछे बोर्ड पे नजर आ रही है। बट व्हेन देन दैट इज परपेंडिकुलर टू वीपी, देन दैट इज व्हाट, then that is just like a line. You can see here that is just like a what, just like a line. Then that is just like a line. Clear? So it is called your lamina. So when your lamina is what, when your lamina is parallel to any plane, then its true shape lie on it. जब lamina किसी भी plane के साथ parallel होगा, you can see on the board, when the lamina is parallel to any plane, then its true shape lie on it. But when the lamina is perpendicular to any plane, जब लैमिना किसी भी प्लेन के साथ, अब वीपी के साथ पैरेलल था तो फ्रंट व्यू में ट्रू शेप नजर आ रही है, बट अब वीपी के साथ लैमिना परपेंडिकुलर है, then that is what, then that is just like a line. You can see on the board, then that is just like a line. तो ये चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए कि when the lamina is parallel to any plane, then that is true shape lie on it, and when the lamina is perpendicular to any plane, then that is just like a line. Then that is just like a line. Okay. Now next again, when the lamina is parallel, एक चीज और, when the lamina is parallel, then its true shape on it. But when the lamina is perpendicular, then that is just like a line. But when the lamina is inclined to any plane, अगर lamina किसी plane के साथ inclined है, you can see here, तो ये अब आपको स्केल क्या दिखना शुरू हो गया, ये आपको एक रेक्टेंगल की तरह नजर आना शुरू हो गया, रेक्टेंगल की तरह नजर आना शुरू हो गया, बट है क्या था, स्केल. So it means what I follow from here, I follow from here, when the angle of the lamina is increased, then same like a line, the shape of the lamina is decreased. Clear? Line में क्या होता था, when the angle of the line is increased, then the length of the line is decreased. But line is in 2D, but the line is in single line, but the lamina is in 2D. Due to 2D, when the angle of the lamina is increased, then the shape of the lamina is decreased. ठीक है, लैमिना 2D ऑब्जेक्ट है, तो 2D ऑब्जेक्ट में जब हम एंगल देंगे तो उसकी 2D ऑब्जेक्ट की एक शेप दिखेगी ना, जैसे ये स्क्वायर लैमिना में एक स्क्वायर दिख रही थी, तो अब 2D ऑब्जेक्ट में जब एंगल दिया तो उसकी वो जो शेप है वो क्या हो रही, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है. सो व्हाट आई फॉलो फ्रॉम हियर, व्हेन द एंगल ऑफ द लैमिना इज इंक्रीज, then the shape of the lamina is what, shape of the lamina is decreased. You can see on the board, you can see the shadow on the board. When the shape of the lamina is what, shape of the lamina is decreased, तो आपको ये जो स्केल है वो एक रेक्टेंगल की तरह नजर आएगा. क्लियर? सेम अगर आपको लैमिना, आपका लैमिना सपोज सर्कुलर लैमिना है तो पूरा सर्कल नजर आ रहा था. क्लियर? बट व्हेन एंगल इज इंक्रीज देन द शेप इज डिक्रीज, तो वो सर्कल आपको एलिप्स नजर आना शुरू हो गया. You can see on the board that circle has ellipse, or when that is 90 degree, then that is just like a line, then that is just like a line. Clear? So it means what I follow from here, we follow from here, when the lamina is parallel to any plane, then its true shape lie on it. Clear? When that is perpendicular to any plane, then that is just like a line, that is as in edge view. Clear? And when that is inclined to any plane, so due to angle with that plane, the shape of the lamina is decreased. जब लैमिना किसी प्लेन के साथ एंगल बनाएगा तो उसकी शेप क्या होगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट अबाउट द लैमिना, कि लैमिना की पहले हमें ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंट व्यूज कैसे आएंगे और डिफरेंट शेप्स कैसे आएंगे. ठीक है? सो इन द टुडे चैप्टर फर्स्ट आई टॉक अबाउट द लैमिना, डिफरेंट शेप्स ऑफ द लैमिना. तो लैमिना की डिफरेंट शेप्स कहाँ पे स्टार्ट होगी. इफ आई आस्क वी आर द टू लाइंस, if I ask we have the two lines, and in the exam he can ask you give the question we have two lines and that is a lamina. If we have only two lines, suppose one line is here, one line is here and other line is here, so that is a lamina? No, that is only angle. So what is the lamina? The lamina should be a closed figure. The lamina should be a closed figure. तो इसको क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए हमें एक लाइन और लगानी पड़ेगी, एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी. जब मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, then that is a closed figure. Then you can say yes, this is a lamina. You can say yes, this is a lamina. So it means
टू लाइंस का लैमिना हो सकता है? नाउ द क्वेश्चन इज दिस, वी हैव टू लाइंस लैमिना? नो. टू एजेस लैमिना? नो. We required for draw the lamina, we required minimum 3 edges. कोई भी लैमिना को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमें 3 एज ड्रॉ करने पड़ेंगे. सो फॉर ड्रॉ लैमिना वी नीड मिनिमम 3 एज. कोई भी लैमिना ड्रॉ करने के लिए हमें 3 एज जो है वो ड्रॉ करने पड़ेंगे. मिनिमम 3 एजेस का लैमिना होगा. यू कैन सी क्लियर. तो 3 एजेस का पहला लैमिना कौन सा आएगा? पहला लैमिना आपका 3 एजेस का ये आ जाएगा. So yes, we have this first lamina, that is the 3 edges lamina. You can see the shape first proper. That is the 3 edges lamina, and the name of the lamina is what? The name of the lamina is equilateral triangular lamina. Equilateral triangular lamina. In the equilateral triangular lamina, all edges are same, and the all angles between that all 3 edges are same. So when the all edges are same, the angle also same between that 3 edges, then that lamina say as a equilateral lamina. Equilateral triangular shape is what? Triangular. So the name of that lamina is equilateral triangular lamina. अगर आपका equilateral triangular lamina यहाँ पड़ा है, बेस दिख रहा है ग्लास का यहाँ पे प्रॉपर आपको? You can see बेस आपको नजर आना चाहिए. तो अगर equilateral triangular lamina आपका ऐसे पड़ा है, then in the exam he said one of its edge. ये टर्मिनोलॉजी आज हम टर्मिनोलॉजी बेशक डिस्कस करें, ध्यान से समझनी बहुत जरूरी है. नहीं तो बोला एच होता है, स्टूडेंट वहां कॉर्नर लाइन करा रहे हैं. क्लियर. तो इन दैट केस ही से वन ऑफ इट्स एज लाई ऑन एचपी. सो इन दैट केस द लैमिना इज लाइक दैट, वन ऑफ इट्स एज लाई ऑन एचपी. क्लियर. एंड मे बी यू कैन से one of its corner on HP. So in that case that is like this. Now its corner lie on HP. तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैमिना में दो ही चीजें वो लाई करवाने के लिए बोल सकता है, HP VP और मे बी PP पे. मे बी यू कैन से इट्स कॉर्नर ऑन HP और मे बी VP, एंड मे बी यू कैन से इट्स एज ऑन HP. तो अगर उसने एज ऑन एचपी कहा तो वो ऐसे होगा, अगर ऐसे दिखेगा फ्रंट में. अगर उसने कॉर्नर ऑन एचपी कहा तो वो फ्रंट में ऐसे दिखेगा. तो इस केस में फ्रंट में क्या दिख रहा है? प्रैक्टिकली समझो. इस केस में आपको फ्रंट में पूरा लैमिना जो है वो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप दिखेगी ऑन द वीपी. एंड इन दैट केस द होल लैमिना इज व्हाट? द होल लैमिना इज परपेंडिकुलर टू एचपी. So due to that, in that case, in the top view, that is just like a edge. That is just like a edge view. एक लाइन में दिखेगा. टॉप व्यू एक लाइन में ही नजर आएगा. ठीक है. कैसे? जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैमिना था तो पैरेलल टू वीपी था, तो आपको ऐसे दिखा. पैरेलल टू वीपी था तो पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप दिख रही है आपको बोर्ड पे. यू कैन सी. ठीक है. लेकिन व्हेन दैट इज परपेंडिकुलर टू वीपी तो आपको एक एज व्यू एक लाइन दिख रही है बोर्ड पे. यू कैन सी देयर only one edge or line on the root. Clear? So same like that, if he say the lamina is perpendicular to VP, the lamina is perpendicular to VP, and in that case the lamina is like this. So in that case the true shape of the lamina lie where? In that case definitely the true shape of the lamina lie where? The true shape of the lamina lie on where? Lie on HP. Clear? And after taking the projection on HP, when we rotate the HP into what? When we rotate the HP in clockwise direction, the true shape in the top view, that is below XY, as in the right here. Clear? And in that case, what is the front view? The front view is just like a edge view, that is just like a line. ठीक है. फ्रंट व्यू आपको मैक्सिमम जितना एज है उतनी एक लाइन नजर आएगी in the front view, because in that case the whole lamina is what? In that case the whole lamina is perpendicular to VP. Clear? And in that case he can fix maybe he say one edge on VP, maybe he say one edge on VP. So in that case that edge on VP lie on VP. ये वाला एक edge जो है वो VP पे lie करेगा. And maybe he can say one of its corner on VP. तो उसका एक कॉर्नर ऐसे VP पे लाई करता हुआ नजर आएगा. One of its corner on VP.
Clear? So this is the condition of the triangular lamina. Sometime he say H lie on, sometime he say corner lie on. ठीक है, sometime he say that is perpendicular, sometime he say that is parallel. तो definitely जब लैमिना एक प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा तो दूसरे प्लेन के साथ वो पैरेलल होगा. तो when we start the problem of lamina, then always again start from its true shape. तो ट्रू शेप कहाँ पे जाएगी? ट्रू शेप हमेशा लैमिना की जिस प्लेन के साथ वो पैरेलल होगा, द ट्रू शेप ऑफ द लैमिना ऑलवेज लाई ऑन दैट प्लेन, ऑन दैट रिस्पेक्टिव प्लेन. क्लियर? तो इस केस में वीपी के साथ पैरेलल है, इन दैट केस ट्रू शेप ऑन वर्टिकल प्लेन इन द फ्रंट व्यू. और अगर मैं ऐसे कहूँ इस केस में एचपी के साथ पैरेलल है, देन द ट्रू शेप इन द टॉप व्यू ऑन एचपी, एंड व्हेन आई रोटेट द एचपी इनटू क्लॉकवाइज देन दैट इज बिलो XY लाइन. ट्रू शेप उस केस में आपको XY लाइन के नीचे HP के नीचे ऐसे नजर आएगी. क्लियर? ओके. सो वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना. अब ये तीन साइडों के तीन तरह के लैमिना है हमारे पास. वी हैव द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना. फर्स्ट वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना. Yes, we have the equilateral triangular lamina. Yes. If we said right angular triangular lamina, yes, we have the right angular triangular lamina. Right angular triangular lamina. So we have the right angle triangular lamina. Clear? And sometimes we have the isosceles. ठीक है? So we have the isosceles कि तीनों उसके ना तो एज बराबर है ना ही उसके एंगल बराबर है. So we have the isosceles and scalar we also say. So this is the isosceles lamina. तो तीन साइड्स के तीन लैमिना है हमारे पास. Again see it. Equilateral triangular lamina. Yes. Right angle triangular lamina. Yes. And isosceles. Clear? So we have the three types of triangular lamina. Okay. After that तीनों में एक साइड और ऐड कर दी. अभी तक एक लाइन की तो लाइन थी, एक लाइन में हमने दो लाइनें और ऐड कर दी, तो वो क्या बन गया? लैमिना बन गया, ट्रायंगुलर लैमिना बन गया. अब ट्रायंगल की मींस अब हमारे पास तीन लाइन है. वी हैव द थ्री लाइंस कोर्स एंड दिस इज लैमिना लो. दैट इज लैमिना लो बिकॉज व्हाट इज द लैमिना? दैट इज ए क्लोज फिगर. अगर आपने तीनों लाइनें ऐसे रखी तो ये फिगर यहाँ से क्लोज नहीं है, ओपन है. तो इसको क्लोज करने के लिए हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे. अब एक लाइन और ड्रॉ कर दी तो कितनी लाइंस होगी? चार. तो चार लाइन का फर्स्ट टाइप का जो आपके पास लैमिना आएगा दैट इज व्हाट? फोर लाइंस का पहला कौन सा लैमिना होगा आपके पास? यस, वी हैव द स्क्वायर लैमिना. तो फोर लाइंस का फर्स्ट टाइप का जो लैमिना होगा वी हैव द स्क्वायर लैमिना. क्लियर? और मे बी इन दैट केस ही कैन आस्क वन ऑफ इट्स एच लाई ऑन एचपी और मे बी ही कैन से इट्स कॉर्नर ऑन एचपी. ध्यान दो इधर. अगर ऐसे लाई कर रहा है तो इसका कॉर्नर एचपी पे लाई कर रहा है, इट्स कॉर्नर लाई ऑन एचपी. और अगर ऐसे लाई कर रहा है देन इट्स एच लाई ऑन एचपी. क्लियर? और अगर एच लाई ऑन एचपी कर रहा है तो स्केल लैमिना आपको ऐसा नजर आएगा फ्रंट व्यू में. यू कैन सी ऑन द शैडो ऑफ द बोर्ड. अगर कॉर्नर लाई कर रहा है तो स्केल लैमिना आपको ऐसा नजर आएगा टॉप व्यू में. क्लियर? अब वो कह रहा है कि दैट कॉर्नर लाई ऑन, नाउ ही से दैट कॉर्नर लाई ऑन एचपी. तो आप क्या करोगे? उस कॉर्नर के नीचे XY लाइन ड्रॉ कर दोगे बिकॉज यहाँ XY HP खत्म हो रहा है, पीछे XY लाइन है. बट इफ सी से दैट कॉर्नर इज 20 mm अबव द HP, तो वो कॉर्नर XY से 20 mm ऊपर चला जाएगा लाइक दिस. नाउ सी दिस. सो इन दैट केस दैट कॉर्नर 20 mm अबव HP, it means that is 20 mm above XY line. But if we say it's lie on HP, it means in that case that corner lie on XY line. Clear? तो चार साइडों का ये लैमिना रहेगा. और इस केस में भी कभी कभी वो इसके डायगोनल की बात करेगा. Clear? Not edge, not corner. Sometimes he is talking about its diagonal in the statement. So what are the diagonals? When we meet the lines, that line join the opposite corner. These are its two diagonals. How many diagonals in the scale lamina? We have the two diagonals. And sometimes he say one of its diagonal. अगर उसने कंफ्यूज करना होगा तो कभी कभी जानबूझ के वो ऐसा कहेगा one of its diagonal perpendicular to HP.
one of its diagonal perpendicular to HP and other its diagonal parallel to VP and parallel to HP. And in that case he can say one of its diagonal parallel to both. It means this is the corner to corner diagonal that is parallel to HP and that is also parallel to VP. And he can say one of its diagonal perpendicular to HP and parallel to VP. तो डायगोनल की कोई भी कंडीशन वो फिक्स कर सकता है. सो दीज आर द कॉर्नर डायगोनल. अभी डायगोनल समझने बहुत जरूरी है कि वो कहाँ पे होंगे. क्लियर. सो दीज आर द कॉर्नर डायगोनल्स, टू डायगोनल्स इन द स्क्वायर लैमिना. ओके. तो स्क्वायर लैमिना में जो दूसरा टाइप्स का लैमिना आएगा वो कौन सा आएगा? स्क्वायर लैमिना में वी हैव द अदर टाइप ऑफ लैमिना. विच टाइप? यस, in the square lamina we have another type of lamina. That is what? That is the rectangular lamina. Yes. So we have the four sides का तो दूसरी तरह का lamina आएगा. That is the rectangular lamina. And in that case maybe you can say one of its long edge lie on HP. One of its long edge lie on HP. Or maybe he can say one of its long edge making the angle 45 degree with HP. So this long edge making the angle 45 degree with HP. क्लियर. तो टर्मिनोलॉजी वो कोई भी यूज कर सकता है. और इन दैट केस में भी ही कैन से वन ऑफ इट्स लॉन्ग एज मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद एचपी एंड इट्स कॉर्नर ऑन एचपी. और मे बी ही कैन से दैट इज 20 mm above HP. First that corner is 20 mm above HP. After that the long edge making the angle 45 degree with HP. Clear? समझ आ रही बात? So he can fix any terminology. Or maybe in that case he say one of, अब ध्यान से समझना, one of its corner lie on HP and one of its long edge making the angle 45 degree with HP and one of its long diagonal or maybe one of its diagonal, दोनों diagonal इसमें सेम ही होंगे. One of its diagonal 30 degree with VP. अभी ये जो diagonal था ये diagonal is what? That is corner to corner. तो अभी ये जो diagonal था ये VP के साथ क्या है? Parallel. Now he said one of its diagonal making the angle 45 degree with VP. It means it's like that. क्लियर. तो ये ऐसी कोई भी टर्मिनोलॉजी वो फिक्स कर सकता है प्रॉब्लम को टफ बनाने के लिए. क्लियर. सो दिस इज द केस. Not case, this is the shape of the rectangular lamina. And maybe he can say one of its short edge lie on HP. It means the lamina not in like that. Now in the lamina is like that. Clear? तो वो किसी भी कंडीशन में लामिना को रख सकता है. तो किसी भी कंडीशन में रखा, ऐसे रखा तो उसका रेक्टेंगल ऐसे दिखेगा, ऐसे रखा तो उसका रेक्टेंगल ऐसे दिखेगा. एक कॉर्नर उसका 45 डिग्री विद एचपी हो रहा है, एक एज लॉन्ग एज 45 डिग्री एचपी हो रहा है, तो वो ऐसे दिखेगा. दैट्स ऑल. और अभी ये पैरेलल टू वीपी है, वीपी के साथ भी इंक्लाइंड हो रहा है तो ये और कंप्रेस शेप में नजर आएगी. हाँ, और यहाँ भी एक स्टेटमेंट ऐसी भी आती है कि वो कह रहा है कि लैमिना अब आपका ऐसे पड़ा है कि इट्स कॉर्नर ऑन एचपी एंड मेकिंग द एंगल फ्रॉम बोथ एजेस आर सेम फ्रॉम एचपी. तो इट मींस आपस में इस लैमिना के दोनों एजेस का एंगल क्या है? 90 डिग्री. अब ये दोनों एजेस का एंगल आपस में सेम कब होगा? जब 45 इधर 45 इधर होगा. नाउ बोथ एज ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद एचपी इक्वल टू एचपी. जब बोथ एंगल्स आर इक्वल टू एचपी तो वो 45 डिग्री इधर 45 इधर होगा. एंड आफ्टर दैट ही से ऐसे तो हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट ही से द फ्रंट व्यू ऑफ द लैमिना नॉट सीन एज अ रेक्टेंगल, ही से द फ्रंट व्यू ऑफ द लैमिना एज अ स्क्वायर व्यू. तो इट मींस नाउ लैमिना को वीपी के साथ भी हमें इतना एंगल देना पड़ेगा कि वो रेक्टेंगल की जगह हमें स्क्वायर नजर आना शुरू हो जाए. यू कैन सी इन द फ्रंट कि वो वीपी के साथ हमें स्क्वायर आना नजर शुरू हो गया. लाइक दिस गोस. ठीक है. तो वीपी के साथ वो स्क्वायर आना नजर शुरू हो जाएगा लाइक दिस गोस. ठीक है. तो ऐसे ही कोई भी कंडीशन आपको स्टेटमेंट में दे सकते हैं. क्लियर. तो चार साइडों पे भी तीन लैमिना होंगे. फोर साइड्स के भी वी हैव द थ्री लैमिना. फर्स्ट वन इज द स्क्वायर लैमिना, सेकंड इज द रेक्टेंगुलर लैमिना एंड थर्ड वन इज द लाइक ए ट्रायंगुलर लैमिना. जैसे ट्रायंगुलर लैमिना तीन साइड्स के थे, ऐसे स्क्वायर लैमिना भी तीन साइड चार साइड के स्क्वायर लैमिना भी तीन तरह के हो सकते हैं. सो फर्स्ट वी हैव द स्क्वायर लैमिना, सेकंड वी हैव द रेक्टेंगुलर लैमिना एंड थर्ड वन वी हैव द रोम्बस.
Yes, we have the rhombus. So what is the rhombus? The opposites edges are parallel and same. It's called rhombus. Clear? And the angles are same. So this is your rhombus. So in that case, maybe you can fix one of the corner of the rhombus lie on HP. तो वो ऐसे होगा. Maybe you can say one of its long edge of that rhombus on HP. तो वो ऐसे होगा. Edges तो same length के होंगे. And maybe if we say one of its edge lie on HP, तो वो ऐसे होगा. ठीक है. और टर्मिनोलॉजी वो क्या करेगा? और टर्मिनोलॉजी वो ये कहेगा about the diagonals. So you can say we are the two diagonals in the rhombus, जिसको लेके ज्यादातर वो स्टेटमेंट में बोलता है. So we are the two diagonals of the rhombus. अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लूं, so this diagonal see as a long diagonal. Long diagonal जो ऐसे horizontal जा रहा है. So this is the long diagonal of that rhombus. ठीक है. लेकिन अगर नीचे से ऊपर तक फॉलो करता हूँ इस कॉर्नर से ऊपर तक, so this is the short diagonal of the rhombus. Or you can say small diagonal of the rhombus. ये वाला. So we are the two diagonals of the rhombus. अगर मैंने इस corner to corner इसको carry किया, it means that horizontal diagonal see as a long diagonal of the rhombus. अगर मैंने upper to lower corner carry किया, तो ये vertical जो diagonal है, that is the short diagonal of that rhombus. And sometimes you say, अब वो इन diagonal के according fix कैसे करेगा? Sometimes you say the whole the corner of the lamina may be 40 mm above HP, 40 mm ये वाला कॉर्नर HP से 40 mm ऊपर चला गया. And after that he said the whole lamina is perpendicular to HP. perpendicular तो है HP के साथ, but the long diagonal making the angle 30 degree with VP. तो इसका long diagonal vertical plane के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. क्लियर? तो घबराना नहीं है. धीरे धीरे जब लैमिना को कवर करोगे ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको कवर हो जाएगी साथ साथ. ठीक है. ओके. नाउ चार साइडों के जो लैमिनास थे ये हमने कंप्लीट कर लिए. चार साइडों के लैमिना एक बार फिर देखो कौन कौन से होंगे. रोम्बस. यस, रोम्बस लैमिना नहीं बोलना इसको. रोम्बस का नेम ओनली रोम्बस ही है. रोम्बस. देन है लैमिना ही है, नो डाउट. देन रेक्टेंगुलर लैमिना, देन स्क्वायर लैमिना. So we have the different three types of four sides lamina. Okay, like a triangular lamina. Now next, चार साइडों में एक साइड और ऐड कर दी हमने. If we have the four sides, अब हमारे पास चार साइड्स हैं और उन साइड में हमने एक और ऐड कर दी, तो कितना बना? 5 साइड्स का लैमिना. और 5 साइड्स का लैमिना क्या हो गया? पेंटागोनल लैमिना. यस. So we have the pentagonal lamina. We have the 5 sides. था ना वो अमेरिका में पेंटागन के ऊपर जहाँ स्ट्राइक किया था, पेंटागन ही था वो मेरे ख्याल से. यस. सो वी हैव द पेंटागोनल लैमिना. 5 साइड्स ऑफ लैमिना. सो वी हैव द पेंटागोनल लैमिना. इट मींस दैट इज द पेंटागोनल शेप. क्लियर? एंड इन दैट केस वन ऑफ इट्स एज लाई ऑन HP. वन ऑफ इट्स एज लाई ऑन HP. और मे बी यू कैन से वन ऑफ इट्स, ध्यान से देखना, सिर्फ थोड़ा सा घुमाने पे इसकी पूरी शेप हो जाएगी चेंज. वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन HP. तो इस केस में इसका एक कॉर्नर HP पे लाई कर रहा है. क्लियर? एंड इन दैट केस वन ऑफ इट्स एज लाई ऑन HP. वन ऑफ इट्स कॉर्नर, और मे बी यू कैन से वन ऑफ इट्स एज लाई ऑन HP. क्लियर? अब बाकी यहाँ तक जो शेप्स हमने देखी थी स्क्वायर तक, दीज आर इजी शेप्स, यू कैन इजीली ड्रॉ इट. अब पेंटागन हेक्सागन में थोड़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जरूर आती है. करेक्ट पेंटागन और हेक्सागन ड्रॉ नहीं कर पाते. अगर करते भी हैं तो बहुत लेंथी प्रोसेस से करते हैं, जिसमें एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होता है. ठीक है. तो आपको मैं इजी वे में बताऊंगा कि हाउ यू कैन ड्रॉ इजी एंड फास्ट. ड्राइंग में याद रखना, ड्राइंग में किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2, 3, 4, 5 मेथड हो सकते हैं, बट आपने हमेशा इजी, करेक्ट मींस एक्यूरेट और फास्ट मेथड ही यूज करना है. इजी इसलिए क्योंकि वो दिमाग में याद रहेगा, एक्यूरेट इसलिए ताकि वो शेप प्रॉपर बननी चाहिए, और फास्ट इसलिए क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है. तो आपने हमेशा इजी, करेक्ट और इजी, एक्यूरेट और फास्ट मेथड ही फॉलो करना है. क्लियर? तो हाउ वी कैन मेक द पेंटागन विद द इजी मेथड. सी इट. सो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन 0 डिग्री. सबसे पहले हम 0 डिग्री लाइन लेंगे. एक चीज और आपको बताऊं, पेंटागन में हम एंगल कैसे होता है, क्यों होता है. सी इट.
अगर मैं पेंटागन, ये पेंटागन रखा, वी हैव हाउ मेनी साइड्स, 5 साइड्स, और पांचों साइड्स का इसमें इक्वल एंगल होगा, पांचों साइड्स का आपस में एंगल जो है वो इक्वल होगा। अगर मैं इसकी पांचों साइड आपस में ऐसे जोड़ देता हूँ तो ये क्या बन गया, मेरे पास एक सर्कल बन गया, पांचों कॉर्नर्स को मीट करना देता हूँ ऐसे, तो ये एक सर्कल बन जाएगा मेरे पास, सर्कल बन जाएगा, क्लियर, सर्कल बन जाएगा। तो कितनी साइड है, 5, और पांचों साइड का एंगल क्या होना चाहिए, सेम। अब अगर ये सर्कल बन गया तो सर्कल का ऑल अराउंड एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। सो व्हाट इज द ऑल अराउंड एंगल इन द केस ऑफ सर्कल, दैट इज 360 डिग्री। और हाउ मेनी साइड्स इन द पेंटागन, 5, और सभी साइड्स का एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इट मींस ईच एंगल शुड बी एट 72 डिग्री। तो पेंटागन में आपके पास हर जो एंगल है आपस में वो 72 डिग्री का एंगल भी आपके पास होना चाहिए इन द केस ऑफ पेंटागोनल लेवल। तो अब इसको इजी कैसे ड्रॉ करोगे आप, सी इट। सबसे पहले आप एक 0 डिग्री लाइन लोगे, सिंपल 0 डिग्री पे लाइन ले ली हमने, क्लियर। और आफ्टर दैट व्हाट वी डू, उसके बाद आप क्या करोगे, 0 डिग्री पे, एक सेकंड, 0 डिग्री पे लाइन लेने के बाद सबसे पहले मैं उसके ऊपर एज कट करूंगा, किसका एज, एज ऑफ द पॉइंट 1 to 2। तो पेंटागन का जो पॉइंट 1, पेंटागन में कितने कॉर्नर्स है, 5, तो पांचों कॉर्नर्स को हम नाम देंगे यहाँ पे, वी कैन गिव द नेम टू द ऑल 5 कॉर्नर्स, मे बी 1 2 3 4 5, और मे बी A B C D or E. So you can give the name from the numbers and you can give the name from alphabets, no problem, clear. So we will give the name here, suppose 1 and 2, और जितना एज है उतना ही आपने इसको रखना है, अदर यू कैन शुड बी erased। तो एज कितना है, suppose he say we have a pentagonal lamina and having the edge is 30 mm long, we have the pentagonal lamina and one having the edge is 30 mm long, so it means all edges and all angles are same in the pentagon shape, so it means सभी पांचों edges का एंगल जो लेंथ है कितनी होगी, 30, क्लियर, और एंगल कितना होगा, सेम, और एंगल लेंथ कितनी होगी, 30, सभी एजेस की, ऑल 5 एजेस, हाउ मच लेंथ, दैट इज 30, क्लियर, क्योंकि सभी एजेस की लेंथ जो है पेंटागन में सेम होगी, इक्वल रेगुलर पेंटागोनल लैमिना इसको बोलेंगे, ठीक है। इक्वल क्यों, क्योंकि सभी एजेस सेम है, और रेगुलर क्यों, क्योंकि जहां पे एक एज खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा स्टार्ट हो रहा है, दूसरा खत्म हुआ तीसरा, तीसरा खत्म हुआ चौथा, चौथा खत्म हुआ पांचवा, पांचवा खत्म हुआ फिर पहला स्टार्ट हो गया। तो इट मींस दिस इज द रेगुलर शेप, कहीं पे भी इररेगुलर नहीं है, ठीक है ना, कहीं पे इररेगुलर नहीं है, जहां कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, रेगुलर शेप है। So the all edges are should be same, that as is 30, it means in the all 5 edges the length of the lamina is 30 and the angle is also same, it means in the all edges the angle should be at 72 degree। तो मैंने पहले 30 कट किया, आफ्टर कटिंग द 30 व्हाट आई डू हियर, 30 कट करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, व्हाट वी डू, आफ्टर कट द 30 we make the angle 72 degree from the point 2, 72 डिग्री इस तरफ एंगल बना देंगे एंड 72 डिग्री ऑन द अदर साइड लाइक दिस। सो दिस इज द इजी एंड फास्ट वे फॉर ड्रॉ द पेंटागोनल लैमिना। सो इट मींस यू कैन आल्सो राइट द एंगल, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए, यू नो अबाउट द एग्जैक्ट एंगल ऑफ द पेंटागन। आउटर एंगल रहेगा, याद रखना 72 डिग्री, 72 डिग्री फ्रॉम बोथ साइड, इट मींस 72 डिग्री इधर एक्सटेंड कर दिया, 72 डिग्री दिस साइड, क्लियर। सो आफ्टर दैट उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपने जितना एज 1 से 2 है, याद रखना जितना एज 1 से 2 है उतनी आपने कंपास ओपन की एंड कट द एंगल 72 बोथ साइड, इधर भी कट कर दिया, इधर भी कट कर दिया, दोनों तरफ आपने जितना एज 1 से 2 है उतनी कंपास ओपन की, फिक्स ऑन द 2 एंड कट दिस 72 डिग्री एंड फिक्स ऑन द 1 एंड कट दिस साइड 72 डिग्री। तो दोनों तरफ से आपने 72 डिग्री को कट किया, इट मींस अप टू हियर व्हाट वी डू, जितना एच 1 टू टी 2 था, कितना था 30 था, इसलिए मैंने 30 इधर कट कर दिया, 30 इधर, कंपास उतनी ओपन कट करने का मीनिंग ये हुआ कि सेम लेंथ मैंने दोनों तरफ कट कर दी। आफ्टर दैट कंपास आपने उतनी ही ओपन रहने देनी है, 30 एज है 30 ओपन रहने देनी है। नाउ यू फिक्स ऑन दिस पॉइंट एंड मेक द आर्क एंड फिक्स ऑन द अदर पॉइंट एंड अगेन मेक द आर्क। इट मींस इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पॉइंट मेरे पास 5 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा और यहाँ पे 4 मिलेगा। सो इट मींस व्हाट यू डू हियर, ओपन द
compass 1 to 2 and cut on 72 degree angle and cut on this side 72 degree angle. दोनों तरफ जहाँ मैंने कट किया वहाँ दूसरे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। कंपास उतनी ही ओपन आने दी, मैंने 5 पे रखा और इधर आर्क लगा दी, अब 3 पे रखा और इधर आर्क लगा दी। तो दोनों आर्क्स जहाँ पे कट करेंगे, where the both arcs are cut to each other, intersect to each other, definitely they produce the point 4. ठीक है, जहाँ पे दोनों आर्क्स मिलेंगे वहाँ पे मुझे पॉइंट 4 मिल जाएगा। वहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा आपको? पॉइंट 4 मिल जाएगा। सो व्हाट इज द लैमिना? दैट इज 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 5 and 5 to again 1. सो इससे इजी और इससे फास्ट मेथड और कोई नहीं है। दिस इज द इजी एंड फास्टेस्ट मेथड फॉर ड्रॉ द पेंटागोनल लैमिना। फास्ट इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ 2 ही बार एंगल आपने फॉलो किया। अगर देखो जिनको मेथड नहीं आता स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना तो पता होता है 30 अगर 72 डिग्री एंगल होगा तो ये 0 डिग्री लाइन लगाई, फिर इसका 72 डिग्री इधर लगाया एंगल मैंने, फिर इसको 1 से 2 तक कट किया, फिर इसको 0 माना, इसका 72 डिग्री लगाया, इसको फिर उसने कट किया 3 से 4 तक, फिर इसको 0 माना, इसका 72 डिग्री कट किया, इसको फिर 4 से 5 तक मीट किया, फिर इसको 0 डिग्री माना, इसका 72 डिग्री एंगल लगाया। तो एंड में देखा वो मिला नहीं, एंड पे ये पॉइंट 5 1 से मीट करना चाहिए, वो मीट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा प्रॉपर? बिकॉज आपने 1 2 3 4 टाइम्स आपने 72 डिग्री एंगल लगाया और बीच में कहीं एक बार भी आप गड़बड़ कर गए और पॉइंट आपस में ना मिले तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी गया तो आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप बार बार 0 मान के, पहले इसको 0 माना, फिर 72 डिग्री एंगल इधर लगा, फिर इसको 0 माना, फिर 72 डिग्री इधर, एंगल घुमाते घुमाते प्लस करते यू वेस्ट द टाइम। क्लियर? सो दिस इज द इजी एंड फास्ट मेथड एंड करेक्ट मेथड। आपने हमेशा ड्राइंग में जो इजी होगा, फास्ट होगा और करेक्ट मेथड होगा वही आपने फॉलो करना है। ये हमें आप हमेशा याद रखना। नो डाउट ड्राइंग को बनाने के लिए आपके पास 1 2 3 4 वेज हो सकते हैं, बट ऑलवेज फॉलो द क्विक एक्यूरेट एंड फास्ट मेथड। ठीक है, क्यों ये अब आपको बता चुका हूँ। ओके, सो दिस इज द मेथड हाउ यू कैन ड्रॉ द पेंटागोनल लैमिना। करेक्ट पेंटागन, एक्यूरेट करेक्ट एंड एक्यूरेट शेप पेंटागोनल लैमिना, क्योंकि इसकी शेप प्रॉपर पेंटागन की वैसी होनी चाहिए, याद रखना। अगर इसकी शेप सही नहीं है तो एग्जाम में डेफिनेटली वो मार्क्स कट कर देगा, मार्क्स कट हो जाएंगे, हो सकता है वो प्रॉब्लम भी गलत कर दे। ठीक है ना, क्योंकि आपने अगर कोई बिल्डिंग पेंटागन शेप की बनानी है और अगर आपने उसकी फाउंडेशन ही पेंटागन प्रॉपर ना रखी तो ऊपर तक बिल्डिंग पेंटागन एक्सटेंड हो पाएगी? नो, पूरी बिल्डिंग क्लैप्स हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर? तो सेम लाइक दैट योर बेसिक शेप शुड बी करेक्ट एंड एक्यूरेट। ये बेसिक शेप अगर आपने सही बना दी तो इस केस को आप सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज तक ले जाओगे, ये प्रॉपर सही ड्रॉ होता चला जाएगा। अगर बेसिक यहाँ पे स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज से सही नहीं रखा तो एंड तक कभी भी सही नहीं बनेगा, गलत होता चला जाएगा। तो आपका जो बेसिक नींव है वो प्रॉपर सही होनी चाहिए। ठीक है ना, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लियर? ओके, तो अब अगर उसने ये बोला है कि इट्स बेस लाई ऑन HP, वन ऑफ इट्स बेस एज लाई ऑन HP, तो इट्स वेरी, आप उसका जो बेस है उसको इधर और इधर एक्सटेंड कर दो और ये आपकी डेफिनेटली क्या बन जाएगी? XY। देन इट्स बेस लाई ऑन HP। क्लियर? देन इट्स बेस लाई ऑन HP, इट मींस इट्स लाई like this. But if we say its base is 20 mm above HP, so simple, in that case जो XY है वो उसके बेस से 20 mm नीचे ड्रॉ कर दो। Now its base 20 mm above HP, तो इस केस में उसका बेस 20 mm above HP हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, अगर उसने ये दिया कि इट्स कॉर्नर ऑन HP, इट मींस ऐसे नहीं दिया। अब देखो उसने ऐसे नहीं दिया कि इट्स बेस ऑन HP, नाउ वी से इट्स कॉर्नर ऑन HP लाइक दिस। तो फिर क्या, फिर हम नीचे से ऊपर गए थे, अब हम ऊपर से नीचे चल पड़ेंगे। 1 2 इधर ले लो, 72 डिग्री इधर ले लो, उतना कट कर लो, आर्क इधर लगा लो, जहां मिला वहां कॉर्नर पॉइंट आ गया। अगर
अबव HP, तो उस कॉर्नर पॉइंट से 10 mm अबव XY बिलो XY लाइन लगा दूं तो ये कॉर्नर डेफिनेटली क्या हो गया 10 mm अबव HP हो गया। अगर वो कह रहा है इट्स कॉर्नर ऑन HP, तो कॉर्नर को टच करती हुई XY लाइन ड्रॉ कर दो, देन इट्स कॉर्नर ऑन HP। सो सिंपल, क्लियर। तो कंफ्यूज ना होगा कि कॉर्नर लाई करा दिया ना उसका एज लाई करा दिया तो कैसा होगा। अगर आपको शेप प्रॉपर ड्रॉ करनी आती है देन यू कैन इजीली लोकेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स और एज, क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ लैमिना, पेंटागन में एक साइड और ऐड कर दी, व्हेन आई ऐड द वन साइड मोर इन पेंटागन। अगर मैंने पेंटागन में एक साइड और ऐड कर दी तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका हेक्सागोनल लैमिना बन जाएगा। If I add one side more in the pentagon, then that is the hexagonal lamina. In the hexagonal lamina we have the 6 edge. और hexagonal lamina को अगर मैं एंगल देखूं तो ऑल अराउंड करूं तो वो क्या कितने डिग्री हो गया, राउंड हो गया 360 डिग्री, ऐसे हो गया वो भी, क्लियर। तो 360 divided by now how many edges, because the all angle should be same in the lamina, regular lamina. So that is 360 degree, but now we have the 6 edge, so due to that each angle should be at 60 degree. तो पेंटागन हेक्सागोनल लैमिना में याद रखना हर एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। और 6 के 6 एजेस आपस में सेम लेंथ के होंगे एंड ईच एंड एवरी एंगल इज एट 60 डिग्री। और हेक्सागन में भी ऑलरेडी पहले भी रिपीट किया था, एज लाई कर रहा तो ऐसे हो गया, कॉर्नर लाई कर रहा तो ऐसे हो गया, ठीक है। लेकिन हेक्सागन में अब 6 एंगल है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अगर आप ऐसे 60 60 60 एंगल बनाते रहोगे and that is again wastes the time in exam. So we have the one more method for draw the easy and fast hexagon. हमारे पास एक और मेथड है इजी और फास्ट हेक्सागन ड्रॉ करने का। वो क्या है कि सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना। फर्स्ट ड्रॉ फास्टली ए सर्कल, एक्सवाई लाइन नहीं लाई करवानी अभी। जब भी पेंटागन हेक्सागन लैमिना बनाओगे तो पहले आपने शेप बनानी है, उसके बाद एक्सवाई लाइन की क्या कंडीशन है वहां लाई कराना है। तो सबसे पहले मैंने सर्कल फटाफट बना दिया और सर्कल में हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस को मैंने एज ए सेंटर लाइन लोकेट कर दिया, क्लियर। दैट इज थिन लाइन एंड शॉर्ट डैश। तो दिस इज द सर्कुलर लैमिना। पहले अगर आपको ये कहता है वी हैव अ सर्कुलर लैमिना, देन यस दिस इज द सर्कुलर लैमिना, इट्स इजी। तो सर्कुलर लैमिना कैसे बनेगा, इसमें दो चीजें दी होती हैं। वी हैव द सर्कुलर लैमिना, यू कैन सी हियर, दिस इज द सर्कुलर लैमिना, यू कैन सी द शैडो ऑन द बोर्ड, दिस इज द सर्कुलर लैमिना, क्लियर। तो सर्कुलर लैमिना में दो चीजें दी होंगी आपको। कौन कौन सी दो चीजें दी होंगी सर्कुलर लैमिना में? सर्कुलर लैमिना में समटाइम ही इज टॉकिंग अबाउट इट्स डायमीटर और समटाइम ही इज टॉकिंग अबाउट इट्स रेडियस। अगर स्टूडेंट यहाँ गलती क्या करते हैं, उसने बोला डायमीटर, डायमीटर इज 30, तो स्टूडेंट फटाफट क्या करते हैं, कंपास को 30 खोलेंगे और रोटेट कर देंगे, और 30 कंपास को रोटेट कर दिया था वो तो डायमीटर 60 हो गया, आपने रेडियस 30 ले लिया ना। तो याद रखना अगर वो डायमीटर की बात कर रहा है तो हमेशा उसका हाफ करके कंपास ओपन करनी है। डायमीटर 40 या 30 कह रहा है तो आप 15 कंपास ओपन करोगे, अगर 40 का है तो 20 कंपास रेडियस ओपन करोगे। और अगर उसने डायरेक्ट दिया कि इट्स रेडियस इज 15 mm, तो डेफिनेटली नो डाउट ओपन द कंपास एज ए रेडियस 15 mm and draw a circle. Draw a circle, so definitely your circular lamina is the diameter of the 30, no problem. ठीक है, तो सर्कुलर लैमिना तो ऐसे ड्रॉ करते थे, कर सकते हैं मतलब, ठीक है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट हेक्सागोनल लैमिना। तो हेक्सागन में क्या करना है कि जितना हेक्सागन का आपको एज बोला है, याद रखना जितना हेक्सागन का एज बोला है उसने हेक्सागोनल लैमिना का, जितना आपको उसने क्या बोला है एज, उतना आप रेडियस ओपन करोगे पहले। तो आपको एज कितना बोला उसने, नॉट 50, नो एज इज टॉकिंग अबाउट 30। तो 30 आपने रेडियस एज ए रेडियस ओपन किया एंड मेक ए सर्कल, ओपन द रेडियस 30 एंड मेक ए सर्कल। तो जितना आपने रेडियस ओपन किया, आप ध्यान से देखो इस चीज को, जितना आपने क्या ओपन किया इसका रेडियस कितना ओपन किया था, दिस वन इज 30, दिस वन इज 30। तो आपने अगर तो कॉर्नर इधर रखने हैं, अगर तो आपने हेक्सागन ऐसे लाई करा, इट मींस व्हेन ही आस्क इट्स one edge lie on HP, then definitely the corner in horizontal direction like this, opposite corner। तो अगर तो आपने कॉर्नर इधर रखने हैं
तो आप कंपास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इधर और इधर रख के कट कराओगे रेडियस को, क्लियर। बट समटाइम ही इज टॉकिंग अबाउट इट्स कॉर्नर लाइक ऑन एचपी, ऐसे। तो अगर आपने कॉर्नर वर्टिकल एज पे रखने हैं तो आप कंपास वर्टिकल एक्सिस पे रख के कट करोगे, ठीक है। कैसे अभी बताता हूँ। सो ही से द कॉर्नर opposite corner parallel to HP, or maybe he can say its diagonal meeting the opposite corner that is parallel to HP, or maybe he can say one of its edge lie on HP, then definitely the corner this side, it means on the horizontal axis, clear. So then in that case what do you do here? So in that case open the compass as a radius 30 and fix on the compass horizontal edge and cut on this side and from this side, both side cut the circle. Again from this side we cut here like this, and from this side we cut here like this. So ऐसे आप अगर आपने कॉर्नर इधर इधर रखने तो ऐसे आप ये इधर कट करोगे ऐसे। अगेन सीट ओपन द कंपास, ओपन रेडियस 30 and fix on the horizontal axis and cut the circumference on this side and again from this side, and again fix on the other corner, cut the upper side 30 and again cut on the lower side 30. It means both side you can cut the circumference 30 upper side and lower side, okay? You can cut the radius on that circumference. So after that meet that corners, जहाँ पे भी वो कट करेगा, एक्चुअली एग्जैक्ट मेरे पास यहाँ कंपास नहीं थी, थोड़े से पॉइंट ऊपर नीचे चले गए एनीहो, तो जहाँ भी वो कट करेगा उसको हमने आपस में मीट करा दिया लाइक दिस, एंड अगेन फ्रॉम दिस साइड, सपोज फ्रॉम दिस साइड दैट इज लाइक दिस। तो जहाँ पे भी सर्कमफ्रेंस पे कट की कंपास वहाँ पे हमने उसको मीट करवा दिया लाइक दिस। यहाँ पे मीट हो गए और ऑलरेडी 2 पॉइंट आपको ये मिले थे इसके, तो इन दोनों पॉइंटों से भी आप मीट कर लोगे लाइक दिस। एंड याद रखना द opposite edges are always parallel in that case. So when you meet that all 6 points and the opposite edges should be parallel to each other, you can say. So in that case you can easily draw the hexagonal line, and this is the easy and fast way. अब आपको क्या चाहिए था? हेक्सागोनल लैमिना। तो अगर इस केस में आपने सर्कल बार में बाहर रहने दिया, सर्कल अगर बाहर का रेज नहीं किया, तो वो ये कंसेप्ट हो जाएगा कि आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, वी हैव ए सर्कुलर डिस्क एंड इन दैट डिस्क वी हैव ए हेक्सागोनल होल और यू कैन हेक्सागोनल शेप ऑन इट। तो ये केस हो जाएगा। सो इट मींस वी नॉट हैव ए सर्कुलर डिस्क हियर or circular lamina, so it means we remove this circular lamina in that case, clear। तो इस केस में हमने क्या किया था, जो बाहर सर्कल आ रहा है इसको इसीलिए लाइट ड्रॉ करना है, यू कैन इरेज इट, आप इसको इरेज कर दोगे आउटर सर्कल को। सो विद दैट यू कैन इजीली ड्रॉ द करेक्ट एंड एक्यूरेट एंड फास्ट मेथड फॉर द हेक्सागोनल लैमिना। तो यू कैन ड्रॉ द हेक्सागोनल लैमिना विद दैट इन दैट केस, क्लियर जी। लेकिन अगर आपको वो ये कहता कि कॉर्नर लाई, इस केस में क्या हो गया, देखो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, इट्स एज लाई ऑन एच। तो डेफिनेटली जहां नीचे एज आ रहा है, अब उस एज को हम पैरेलल टू एक्स वाई और पैरेलल टू एच पी एक्स वाई हम ड्रॉ कर देंगे, देन डेफिनेटली इट्स एज लाई ऑन एच पी हो जाएगा और रेफरेंस लाइन हो जाएगी। लेकिन अगर उसने बोला कि दैट एज इज 10 mm अबव एचपी और रेफरेंस लाइन, तो उस एज के 10 या 20 नीचे रेफरेंस लाइन एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्लियर। लेकिन इस केस में अगर उसने ये बोला था कि इट्स कॉर्नर ऑन एचपी, तो उसमें क्या होता, उसमें भी हम कंपास इधर और इधर रख के कट की ना हॉरिजॉन्टल पे, फिर इधर भी रखनी है, फिर अपोजिट मींस वर्टिकल एक्सिस पे कंपास हमने इधर रख के सर्कमफ्रेंस को इधर और इधर कट करना था, ऐसे नीचे से इधर और इधर, और सेम उसी मेथड से जब हम मीट करते हैं तो देन इन दैट केस इट्स कॉर्नर लाई ऑन एचपी ऐसे हो जाता है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे हमने कंपास को रखा कॉर्नर पे इधर और इधर कट किया इधर, और इस साइड से इधर और नीचे से इधर कट किया, तो ये हेक्सागन ऐसे बनता है, क्लियर। सो दिस इज द मेथड हाउ यू कैन ड्रॉ द हेक्सागोनल लैमिना।
And if the lamina is parallel to HP, then definitely its true shape on VP. You can see on the board, its true shape on VP and one of its edge lie on HP like this. Clear? So you can see the shape of the hexagon here. But when we say its coronal lie on HP, then that shape is like this. क्लियर? और अगर ये पैरेलल है तो ट्रू शेप दिखेगा, लेकिन अगर when that is parallel then its true shape on VP, you can see on the board its true shape on VP आपको नजर आ रही होगी पीछे मेरे ख्याल से लाइन से चलो, तो its true shape on VP, but when the angle is increased then the shape is decreased. तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो उसकी शेप जो है वो डिक्रीज होती जाएगी ऐसे, और when that is perpendicular to VP then that is just like a line in the front view. Clear? So this is the concept of the lamina, how you can draw the different shapes of the lamina in the chapter projection of planes and lamina. तो आज इतना ही। आज के चैप्टर में हमने जो है अभी सिर्फ लैमिना को डिस्क्राइब किया है, प्लेन को थोड़ा डिस्क्राइब किया है, और प्लस हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैमिना को डिस्क्राइब किया है एंड हाउ वी कैन ड्रॉ द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ द लैमिना, इसको हमने कवर किया है। ठीक है, सो विद दैट दिस लेक्चर इज फिनिश्ड। सो मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पूरा लेक्चर आप स्टूडेंट्स को जरूर फॉरवर्ड करें। क्लियर? अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने साथियों को फॉरवर्ड करें, अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करें, क्योंकि जब तक लैमिना की बेसिक शेप्स स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं आएंगी, नहीं पढ़ेंगी, तब तक वो इन शेप्स को गलत करता चला जाएगा और पूरा कंसेप्ट कवर होने के बावजूद उसकी पूरी प्रॉब्लम जो है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप गलत होती चली जाएगी, क्योंकि बेसिक शेप प्रॉपर ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टूडेंट्स थर्ड स्टेज तक ड्रॉ कर देते हैं इस प्रॉब्लम को, बट फर्स्ट स्टेज में उनकी बेसिक शेप ही अच्छी तरह ड्रॉ हुई होती, वही गलत होती है। तो अगर उसका बेस गलत है तो चाहे वो उसको सेकंड स्टेज तक ले जाए, चाहे थर्ड स्टेज तक ले जाए, वो एंड तक गलत होती चली जाएगी। ठीक है, तो बेसिक शेप प्रॉपर ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है, इसीलिए आज का लेक्चर सारा मैंने लैमिना की बेसिक शेप्स के ऊपर ही रखा है। ठीक है, अभी आज हमने कोई कॉन्सेप्ट नहीं कवर किया, वैसे मैंने सोचा था कि हम कम से कम एक दो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि बेसिक शेप्स अच्छी ना क्लियर होनी बहुत जरूरी है, तो बेसिक शेप्स के ऊपर ही पूरे लेक्चर को आज कवर किया हमने कि हाउ वी कैन ड्रॉ द बेसिक शेप्स ऑफ द लैमिना विद द इजी, एक्यूरेट एंड फास्ट मेथड। क्लियर? सो कल हम मिलेंगे पहले कॉन्सेप्ट से एंड वी विल ट्राई कल मिनिमम 2 या 3 कॉन्सेप्ट हम कवर करें इसके, ताकि टोटल 6 कॉन्सेप्ट हैं। आई विल ट्राई कि अगले 2 या मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में ये आपका पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो जाए। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।